دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کروڑہا قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانداروں میں سے ایک جانور کتا بھی ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک کو اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، مگر آپ ہم سب کے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آج ہم پیپل لائیو کی اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ اسلام میں کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی، اور جب اس کی ممانعت ہی کی جانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس جاندار کی خلقت کیوں فرمائی، اس کو کیوں پیدا کیا اور کس طرح پیدا کیا۔ پیپل لائیو کی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہی ہے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہماری سبسکرپشن لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور یوں آنے والی ہر ویڈیو کو باقاعدگی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم کے پیٹ پر گرا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل نے یہ مٹی نکالی۔ حضرت آدم کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا۔ خواتین و حضرات، قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خصائص ہوتے ہیں، اور یہ دو خصلتیں اس لیے ہیں کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا اور یہ انسان پر بھونکتا ہے۔ اس کی وجہ قدیم صحائف میں یہ درج کی جاتی ہے کیونکہ یہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ کتے کی تخلیق کا سبب اور اس کی پیدائش کے عمل کے بارے میں دوسری روایت ہمیں نور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیوں پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ابلیس کی تھوک سے پیدا کیا۔ عرض کیا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور بولا کہ آسمان سے دو پرندے گرے ہیں، ان سے بڑا پرندہ شکار کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس ان کو راستے میں للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مسافت ہے، اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا۔ تو اللہ نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر دیے۔ وہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے ان درندوں کو ان کے قریب آنے نہیں دیا۔ اسی دن سے کتا جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتوں کے دشمن ہو گئے۔ غالباً کتے میں وفا کا عنصر اسی لیے شامل ہے کہ یہ روز ازل ہی سے انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہے۔ مگر دوستو، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو
घर में रखने से मुसलमानों को क्यों मना फरमाया गया है। यही हमारी इस आज की वीडियो का टॉपिक है और हम इसको एक तफसीली जवाब की सूरत में आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ हम कुछ साइंसी इंकशाफात ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि जिसके बाद आपके जहन में किसी भी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी कि बिला आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिला ज़रूरत घर में कुत्ते पालने की ममानियत क्यों फरमाई है। ख़वातीन व हज़रात, बड़े दुख की बात है कि यूरोप की तकलीद में हमारे यहाँ भी अमीर घरानों में कुत्तों से खेलना और शौकिया तौर पर घरों पर कुत्ते पालना एक फ़ैशन और स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। यहाँ ये बात ज़रूर आप तक पहुँचा दें कि इस्लाम में कुत्ते रखना बिल्कुल ही मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी एक महदूद इजाज़त कुछ शराइत के तहत दी गई है। चुनाचे जो कुत्ते किसी ज़रूरत से पाले जाएं, मसलन शिकारी कुत्ते या खेत और मवेशियों वगैरह की हिफाजत करने वाले कुत्ते, वो इस हुक्म से बाहर हैं। मुशाहिदे की बात यह है कि लोग कुत्तों पर तो खूब खर्च करते हैं, लेकिन इंसान की औलाद पर खर्च करने में बुखल से काम लेते हैं। मगरिब में तो ऐसे बेशुमार लोग हैं जो मरते वक्त अपनी जायदाद कुत्तों के नाम कर जाते हैं और अपने पड़ोसी हत्ता के अपने भाई तक को भूल जाते हैं, अपने अजीज़ों कारब से बेरुखी बरतते हैं। यहाँ आप तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पहुँचाते हैं कि मेरे पास जिब्राईल तशरीफ़ लाए और कहा, गुज़िश्ता शब में आया था, लेकिन घर में दाखिल ना होने की वजह ये थी कि दरवाज़े पर मुजस्समा था और घर में तस्वीरों वाला पर्दा था और घर में कुत्ता भी था। लिहाजा जो मुजस्समा घर में है उसका सर आप इस तरह कटवा दीजिए कि वो दरख्त की शक्ल में रह जाए और पर्दा फाड़ कर तकिए बना लीजिए और कुत्ते को घर से बाहर निकलवा दीजिए। ख़वातीन हज़रात, कुत्तों के बारे में इस्लामी अहकामात तो बड़े वाज़े और क्लियर हैं, लेकिन यहाँ ये भी मुनासिब मालूम होता है कि आपके साथ कुछ जदीद साइंसी मालूमात भी शेयर करें, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें जहनों में सवालात जन्म लेते हैं। चुनाचे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कुछ साइंसी इंकशाफात के ज़रिए आपके जहनों में पैदा होने वाले इन सवालों का जवाब ज़रूर प्रोवाइड करें, ताकि एक आम मुसलमान अपने दीन पर ईमान मजबूत रखे और वहीं एक गैर मुस्लिम के दिल में भी दीन इस्लाम के बरहक होने के बारे में एक मुस्बत फ़िक्र पैदा हो सके। अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी ने इन साइंसी मालूमात को अपनी किताब इस्लाम में हलाल व हराम के ज़रिए एक जर्मन स्कॉलर नॉलर से कलमबंद किया है। उसका ये मजमून एक जर्मन रिसाले में शाया हुआ था। इस मजमून में उन अहम ख़तरात को बयान किया गया है जो कुत्ते को पालने या उसके करीब रहने की सूरत में लाहक होते हैं। नॉलर लिखता है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में लोगों के अंदर कुत्ता पालने का शौक़ काफ़ी बढ़ गया है, जिसके पेश नज़र ज़रूरत महसूस होती है कि लोगों की तवज्जो इन ख़तरात की तरफ मबजूल कराई जाए जो इससे पैदा होते हैं, खुसूसन जबकि लोग कुत्ता पालने ही पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि उस घर में इस तरह छोड़ दिया जाता है कि वो छोटों और बड़ों के हाथ चाट ले, उनकी प्लेटों में रखा खाना खा जाए। तिब्बी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कुत्ते को पालने और उसके साथ खुशतबई करने से जो ख़तरात इंसान की सेहत और इसकी ज़िंदगी को लाहक होते हैं, उनको मामूली ख्याल नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों को अपनी नादानी की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसकी वजह यह है कि कुत्तों के जिस्म पर ऐसे जरासीम होते हैं जो दायमी और लाइलाज इमराज का सबब बनते हैं, बल्कि कितने ही लोग इस मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इस जरासीम की शक्ल फीता की मानिंद होती है और ये इंसान के जिस्म पर फिंसी की शक्ल में जाहिर होते हैं। गो इस किस्म के जरासीम मवेशियों और ख़ास तौर से सूरों के जिस्म पर भी पाए जाते हैं, लेकिन नशोनुमा की पूरी सलाहियत रखने वाले जरासीम सिर्फ कुत्तों पर होते हैं। यही जरासीम गीदड़ और भेड़िए के जिस्म पर भी होते हैं। ये जरासीम इतने बारीक होते हैं कि दिखाई देना भी मुश्किल होता है। ये जर्मन स्कॉलर नॉलर आगे लिखता है कि ये जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वहाँ मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर फेफड़े, उज़लात, तिल्ली, गुर्दा और सर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते हैं। इनकी शक्ल बहुत कुछ बदल जाती है, यहाँ तक कि खुसूसी माहिरीन के लिए भी इनकी शनाख्त मुश्किल हो जाती है। बहरहाल इससे जो ज़ख्म पैदा होता है, खा वो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, सेहत के लिए सख्त मुज़िर है। इन जरासीम का इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। जर्मन डॉक्टर नॉलर का बयान ये है कि कुत्ते के जरासीम से इंसान पर जो जख्म उभर आते हैं उनकी तादाद 1% से किसी तरह कम नहीं और बाज़ ममालिक में तो 12% तक इसमें मुब्तला पाए जाते हैं। इस मर्ज का मुकाबला करने की बेहतरीन सूरत ये है
है कि इन जरासीमों को कुत्तों तक ही रहने दिया जाए और इन्हें फैलने से रोका जाए। अगर इंसान अपनी सेहत को महफूज और अपनी ज़िंदगी को बाकी रखना चाहता है तो उसे कुत्तों के साथ खुशतबई नहीं करना चाहिए, उन्हें करीब आने से रोकना चाहिए, बच्चों को उनके साथ घुल मिल जाने से बच रखना चाहिए। कुत्तों को हाथ चाटने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए और ना ही बच्चों को खेलकूद और तफरीह के मकामात में रहने और वहाँ गंदगी फैलाने का मौका देना चाहिए। इसी तरह कुत्तों के खाने के बर्तन भी अलग होने चाहिए। इंसान अपनी खाने के लिए जो प्लेटें वगैरह इस्तेमाल करता है उनको कुत्तों के आगे चाटने के लिए नहीं डाल देना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान आपके साथ शेयर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाले तो उसे चाहिए कि बर्तन को 7 मरतबा धोए और उनमें से 1 मरतबा मट्टी लगाकर धो ले। सामीन इकराम, ये जो मालूमात आप तक पहुँचाई गई और फिर इनका मुवाजना नबी मेहरबान आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमूदात के साथ करें जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ते पालने से मना फरमाया, या फिर अगर किसी प्लेट में किसी बर्तन में कुत्ते का मुंह लग जाए तो उसको पाक किस तरह करना है, तो ये गौर की बात है कि क्या इस ज़माने में कोई जदीद लेबॉर्ट्री मौजूद थी कि जहाँ से हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इन बातों की तलकीन फरमाई? यकीनन ऐसी बात नहीं थी। तो फिर इन तमाम नसीहतों का माखज़ क्या था? ख़वातीन और हज़रात, हमारा ईमान है कि वो माखज़ रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ाते बाबरकत है। इसका सबूत कुरान मजीद की सूरह नज्म की इस आयत मुबारका में मिलता है कि वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो इसकी तरफ की जाती है। तो दोस्तों, हमने आज आपसे ये शेयर किया कि कुत्ते की खलकत का सबब क्या था, कुत्ते को पैदा किस लिए किया गया और किस तरह किया गया, और फिर इतनी सारी खुसूसियात होने के बावजूद इस्लाम में कुत्ता घर में रखने की ममानियत क्यों फरमाई गई। इस सिलसिले में हमने अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरमूदात रखे, इस साथ साथ कुछ मेडिकल एडवाइजेज और साइंसी इंकशाफात के ज़रिए आप तक ये पहुँचाया इन फरमूदात के पीछे क्या हिकमत कार फरमा थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को हमें अपनी ज़िंदगियों से दूर रखने का दरस दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप हमारे चैनल पर आइंदा वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वो वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो आपको याद दहानी करवा दें कि रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली हर वीडियो को आप बआसानी और बाकायदगी से देख सकते हैं। बहुत जल्द पीपल लाइव पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।